Welcome to VLearn. This is session number 12, part 2 on software project management. In this session, we are covering topic software testing, and these are the topic we will cover in this session: testing methodologies, black box testing, white box testing, structure testing, white box testing technique, and incremental testing. There are some testing methodologies: ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड इंक्रीमेंटल टेस्टिंग. जैसे कि हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, what was the main motive to do the testing, and in this session we are going to cover how we can do the testing. Now this is the first is the black box testing. Black box testing means आप जब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो आपको कोड एरिया के बारे में नॉलेज नहीं होती. यू हैव जस्ट सॉफ्टवेयर एंड द कोडिंग एरिया इज द हिडन, जिसके अंदर आपको कोड एरिया नहीं दिखता. आपको सिर्फ कॉस्मेटिक कुछ इनपुट डाल के एंड कॉस्मेटिक आउटपुट चेक करते हैं व्हाट वी आर गेटिंग आउटपुट इज करेक्ट और नॉट. Every cosmetic input we check the cosmetic output, so there is no knowledge of internal design or code required, and tests are based on the requirement and functionality here. This was the here black box testing, and in white box testing is knowledge of internal program. जब आपको internal coding दिया जाता है, internal program की knowledge होती है, and tests are based on coverage of code statement, branches, paths and condition. So this type of testing covers under the white box testing. Some there are the black box testing techniques that we use are incorrect or missing functions, and interface error in the data sources or external database access, performance error, and initialization and termination error. That errors can be generated in the black box software coding, and that can be also made by using the black box testing. अगर हमारे कुछ ऐसे functions हैं जो missing हैं, that we cannot identify by the black box testing, and there is some interface error can also be generated. Error is some data structure basis पे हो सकते हैं, कुछ performance errors हो सकते हैं जो आपकी speed जिससे slow है, and initialization termination errors हो सकते हैं. So there are some black box function testing based on the requirement functionality, not based on any knowledge of internal design or code. जैसे आपको बताया गया था उसके अंदर में आपको internal code की knowledge नहीं होती. That covers all combined part of a system, and tests are data driven. Test cases आपको जैसे बताए थे वो बनाए जाते हैं. And the white box testing, structural testing, white box testing also called here basically structural testing, and the black box was called by functional testing also. So in the white box testing that based on the knowledge of internal logic, जब आपको internal software की coding की knowledge होगी तो आप white box testing कर सकते हैं. That based on coverage of code statements, branches, path and conditions. आपको जो भी कोडिंग के अंदर हम कंडीशंस यूज़ करते हैं, जो हम स्टेटमेंट्स लगाते हैं, कोड्स करते हैं, वो सारी नॉलेज होनी इसके लिए रिक्वायर्ड है. एंड टेस्टिंग आर लॉजिक ड्रिवन हेयर. Some there are other testing that we cover in the black box testing also. जैसे कि आपको बताया था कि हमने black box testing also called the functional testing. So what it say about the basically function testing, the black boxing type. Black box testing का type है. So testing that gathered to be functional requirement of an एप्लीकेशन. आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर की कुछ फंक्शंस आप जो चाहते हो, हम उनको ब्लैक बॉक्स सिस्टम में चेक कर सकते हैं. दैट कैन बी डन बाय द टेस्टर. इसमें टेस्टर को कोड की नॉलेज होनी जरूरी नहीं होता, उसको सिर्फ फंक्शन पता होना चाहिए और उन फंक्शन में कॉस्मेटिक इनपुट डाल के वो आउटपुट चेक कर सकता है. सिस्टम टेस्टिंग दैट ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टाइप testing that is based on overall requirement specification covering all combined part of the system here. जितने भी आपको बताया गया था, जैसे हमने पिछले सेशन में कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं सारे स्मॉल फंक्शंस को. तो इट कवर द सिस्टम टेस्टिंग दैट वी कैन बी डन ऑल्सो यूजिंग द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बाय गिविंग सम कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट एंड कैन चेक द वट वी आर गेटिंग आउटपुट इज द करेक्ट और नॉट. End-to-end testing is also comes the type of the black box testing that is similar to system testing that involve the testing of complete application environment. आपकी जितने भी हमारे पूरे स्टार्टिंग एंड तक जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे चेक इसमें होते हैं इन द रियल वर्ल्ड विच वी यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर. Some is the acceptance testing that is done at the end user level or the customer we say, that is the final base specification of end user customer.
जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके एंड लेवल पे हम चेक करते हैं व्हाट ही वांट इज फाइनली अचीव और नॉट. Also is the load testing. लोड टेस्टिंग इज द टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड. आप कितना मैक्सिमम उसमें इनपुट डाल सकते हो. और एवरी यू नो इन द सॉफ्टवेयर देयर इज एवरीथिंग लिमिटेशन. आप कितना मैक्सिमम इनपुट डाल सकते हो उसका कॉरस्पॉन्डिंगली वो आउटपुट दे सकता है. बट आप उसके बियॉन्ड वैल्यू डालते हैं तो वो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट देगा. सो दिस इज द लोड टेस्टिंग व्हेन यू गिव द beyond the limit the numbers are given. Here testing an application under heavy load. Example here testing a website under the range of load to be determined when the system response time degraded or fail. आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा जब मैक्सिमम यूजर्स उस पर वर्क कर रहे होते हैं उसके ऊपर डाटा डाल रहे होते हैं तो कई बार वो स्लो हो जाता है ड्यू टू द लोड ओवरलोड. Stress testing. Testing under the unusually heavy load, heavy repetition of certain action or input. So input of a large numerical value, large complex queries or a database, etc. that can be for the part is the stress testing. जब आपके पास बहुत ज़्यादा load आ रहा है that is obviously this is stress testing. चेक करना होता है कितने लेवल तक उसको एक्सेप्ट कर रहा है क्वेरीज को, उसकी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज कितने लेवल तक वो एक्सेप्ट कर पा रहा है डाटाबेस से डाटा को फैच करने में. एंड द टर्म ऑफ यूज्ड इंटरचेंजेबल बाय द लोड. परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग दैट कैन बी टेस्टिंग हाउ वेल द एप्लीकेशन कंपायर टू परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड. आपकी कितनी अच्छी स्पीड रखने के लिए हम कितने लेवल तक इनपुट डाल सकते हैं दैट योर परफॉर्मेंस इज मेंटेन्ड एंड किस लेवल पे जाके आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो हम उससे चेक करते हैं एट द परफॉर्मेंस टेस्टिंग में. इंस्टॉल अनइंस्टॉल टेस्टिंग. इंस्टॉल टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि हम कुछ इनपुट कुछ भी डाटा इसमें डाल रहे हैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं या किसी सिस्टम पे हम कुछ कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें आपके कुछ एक नई वैल्यू इन्वायरमेंट पे आपका कुछ डाटा इंस्टॉल होता है. सो टेस्टिंग ऑफ फुल और पार्शियल और अपग्रेड दैट इज इंस्टॉल प्रोसेस जिस पर हम टेस्टिंग चेक करते हैं इंस्टॉल और अनइंस्टॉल लेवल पे. एग्जांपल आप अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम कोई कई प्रॉब्लम्स आती है या अनइंस्टॉल करते टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस लेवल पे हम टेस्टिंग करते हैं. रिकवरी टेस्टिंग. द टेस्टिंग हाउ विल अ सिस्टम रिकवर फ्रॉम द क्रशेस. आपको बताया कहीं आपके हार्ड डिस्क क्रश हो जाती है कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो उस टाइम पे हम उनको कैसे डाटा को रिकवर कर सकते हैं. तो देयर इज ऑल्सो टेस्टिंग दैट वी कैन डू इट ऑन दिस लेवल दैट इज कॉल्ड हेयर रिकवरी टेस्टिंग. नेक्स्ट इज द कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. That is testing how well software performs in a particular hardware, software, operating system and network environment. That is compatibility. आपको पता है कि आप कई सॉफ्टवेयर अगर परचेज करते हैं आपको पहले इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं क्या ये इस विंडो पे वर्क करेगा. इसके लिए क्या हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्टेबल चाहिए या कौन सा विंडो होना चाहिए जिसपे ये हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा या नेटवर्क हो सकता है. तो दीज आर द टर्म दैट इज कंपैटिबिलिटी रिक्वायर्ड दैट इज ऑल्सो टेस्टेड हाउ दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म इन द पर्टिकुलर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क इन्वायरमेंट. Next is the alpha testing. This is the basically testing done when development is the nearing completion and minor design changes may still be made at the result of such testing is called alpha testing. जब हम कुछ टेस्टिंग करते हैं जब डेवलपमेंट में कुछ नियरिंग हमारी कंप्लीट होने वाला है हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो डन बाय द डेवलपर. And the beta testing, that testing when development and testing are essentially completed हो चुकी हैं and finally bugs and the problem need to be found here before the release. So this is at the level of beta testing. And the mutation testing, that is mutation is the small parts you can say that to determining if a set of test data or test cases is useful by deliberately introducing various bugs. आपके कितने बग्स आने आपके छोटे म्यूटेशन बेसिकली हम कहते हैं बड़े पार्ट को स्मॉल पार्ट पे डिवाइड करके हम चेक करते हैं कि एवरी पार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट और देयर समथिंग एरर. सो रीटेस्टिंग विद द ओरिजिनल टेस्ट डाटा केसेस टू डिटरमाइन इफ द बग आर डिटेक्टेड. वी कैन अगेन टू रीटेस्ट हियर. There are some white box testing technique. Last one was we have studied already the black box testing. Now how do we do the white box testing? There are the all independent path
विद इन अ मॉड्यूल दैट हैव बीन एक्सरसाइज एट लीस्ट वन। जैसे कि आपको बताया, जब हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए टेस्टर्स को कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसके अंदर वो हर टास्क को, हर लाइन को, उसकी हर कोडिंग को, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो एंड है स्टेज, वहाँ तक सारे उसको लाइन्स चेक करनी होती है। दैट कवर ऑल पाथ बेसिकली। पाथ से कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट पर जाने के लिए किस किस वे से आप कंप्लीट कर सकते हो। कुछ स्टेटमेंट भी मिस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे को एक स्टार्टिंग से एंड पे जाने के लिए ऑल कोड्स आर टू बी कवर्ड हेयर। आप कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करके भी स्टार्टिंग से एंड पे पहुंच सकते हैं। बट अगर आपको कंप्लीट वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, कंप्लीट पाथ इसके अंदर टेस्ट करते हैं, कोई भी इसमें हम स्किप नहीं करते हैं, दैट इज नीड टू check all independent path within a module, at least one. So here exercise all logical decision are on true or false side. तो हम लॉजिकल्स चेक करते हैं ट्रू एंड फॉल्स साइड पे, जैसे कि हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। अगर येस है तो हमारा क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट और लूप, जैसे कि आपको पता है हमारी कोडिंग में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप्स होते हैं, उनकी बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं, स्टार्टिंग रेंज टू एंड रेंज होती हैं, वो सब चेक की जाती हैं। एक्सरसाइज इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स टू इंश्योर देयर वैलिडिटी। जो डाटा हम उसमें इंटरनल डाटा उसमें डाल रहे हैं एक्सरसाइज में, तो उनकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। And here the some level that we can do in the white box testing is the loop testing is given here. This is the white box technique that focus on the validity of the loop construct. They are the basically for loop. First is the simple loop, second is nested loop, then concatenated loop, and after that is unstructured loop. जैसे कि आप फॉर लूप, वाइल लूप में आप नेस्टेड लूप भी लगाते हैं, सिंपल लूप भी लगाते हैं, तो हम डिफरेंट लेवल पे लूप चेक करते हैं, कंडीशंस उसके अंदर वेरिफिकेशन चेक करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग एंड कंडीशन डाले हैं हर लेवल पे चेक करते हैं। और सम अदर आर द वाइट बॉक्स टेक्निक्स आर है स्टेटमेंट कवरेज दैट एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस। जैसे आपको बताया था कि हमारे इसके अंदर कोडिंग के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, एक बार चेक करना ज़रूरी है। डिसीजन कवरेज दैट एग्जीक्यूट ईच डिसीजन, जो भी हमारी इफ़ कंडीशन लग रही है या स्विच केस लग रही है, हर कंडीशन को चेक करना जरूरी है। कंडीशन कवरेज दैट एग्जीक्यूट each decision that with all possible outcomes at least once. Decision oblique condition coverage that execute all possible number of combination of condition. आपके कंडीशन के जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सबको कंबाइन करके वो चेक करते हैं। एंड मल्टीपल कंडीशन कवरेज दैट इन्वोक ईच पॉइंट ऑफ एंट्री एट लीस्ट वंस। आपकी जितनी भी मल्टीपल कंडीशंस हैं आपकी, उनकी कवरेज को सबको वो एक बार चेक करते हैं, थ्रू विच यू कवर द एंटायर कोड ऑफ स्टेटमेंट्स। There are some example of white box testing of the statement coverage. In this example, you see there the coding is given a plus p, and here the condition used, if a is equal to 3, then in the b we give the result x plus y, and we use here and if, and one more here we use while. लेट्स सी द फर्स्ट अबव एग्जाम्पल। इसके अंदर आप वो इफ़ कंडीशन चेक करें, जैसे हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ा कि वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन या इफ़ कंडीशन जो कंडीशंस हैं उनको चेक करता है। यहाँ पे इफ़ हेयर इज़ द कंडीशन है जिसमें वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू 3 है, तो वो इन वैल्यूज़ को ऐड करेगा एंड द रिजल्ट गोज इन टू द बी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो बी चेक्ड हेयर। And one more statement given here, while a greater than 0 then it do read x, और उसके अंदर से उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है एंड फाइनली एंड कर रहा है। सो हेयर द while कंडीशन चेक फ्रॉम द रेंज व्हाट इट से इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो कॉरस्पॉन्डिंग द हेयर टेस्ट विल ऑल्सो चेक हेयर कंडीशन वाइज 0 से कम भी डाल के देख सकते हैं, ज़्यादा भी डाल के देख सकते हैं, और ये जो इसकी सिंटेक्स टेक्स्ट यहाँ पे चेक किया जाता है कि करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग वो रीड करके उसमें वैल्यू डिक्रीज करेगा। Here the some decision coverage example are, if a decision coverage मतलब आपकी if कंडीशन तो लग रही है बट कवरेज है यहाँ पे कि आपकी वैल्यू लेस देन a एंड 10 एंड ग्रेटर देन 20 जो आपकी है दैट शुड बी लेस देन 10 और ग्रेटर देन 20, then it add the value x and y. So here the decision coverage is should be less than 10 or greater than 20.
Condition coverage example are more here. Taken a value a is equal to x, and if a greater than 3 or a greater than less than b, then b is equal to x plus y. Here condition we check here. अगर आपकी कंडीशन से कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रू होगी तो ही वो b एंड x प्लस y को ऐड करेगा. नेक्स्ट टेकन हेयर वाइल लूप. वाइल लूप में भी अगेन जैसे हमने पहले देखा कंडीशन देकर चेक करते हैं, देन कॉरस्पॉन्डिंगली स्टेटमेंट चेक करते हैं. It cover the while loop. So in this one by one code is to be checked here. Next is the incremental testing. Incremental testing we go to one by one increase at each step. Every test हर level पे check करते हैं. जैसे कि discipline method of testing. Here the interfaces between unit tested program as well as between system component. जैसे कि आपने स्मॉल यूनिट लेवल पे हमने पहले टेस्टिंग बताई थी. यूनिट टेस्टिंग में जब हम स्मॉल मॉड्यूल पे टेस्ट करते हैं एंड फाइनली उनको कंबाइन करके करते हैं तो इट मूव टू इंक्रीमेंट टेस्टिंग कि आप एक स्मॉल लेवल से हाई लेवल तक आपके पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं. इट इन्वॉल्व एडिंग यूनिट टेस्टिंग प्रोग्राम मॉड्यूल और कंपोनेंट वन बाय वन. इसके अंदर आपके जितने भी यूनिट टेस्टिंग है या उनके मॉड्यूल है उनको एक एक करके चेक करता है एंड टेस्टिंग ईच रिजल्ट एंड कम्बिनेशन. जितने भी टेस्ट आपके इसमें कम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं आपके इनपुट के सारे कम्बिनेशन को कंबाइन करके वो कॉरस्पॉन्डिंगली रिजल्ट चेक करता है. देयर आर द टू टाइप ऑफ बेसिकली इंक्रीमेंटल टेस्टिंग. देयर इज द टॉप डाउन एंड बॉटम अप. टॉप डाउन जैसे आप जानते हैं आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो पढ़ी होंगी सी प्लस प्लस है तो आपको पता होगा सी के अंदर हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग किया जाता है. इसके अंदर हम टॉप टू बॉटम स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है. So here then the top down testing from the top of module hierarchy start and it work down to the bottom. There the module are added and descending hierarchical order. So आपकी hierarchy से descending order hierarchy इसके अंदर इसमें testing check की जाती है. top to bottom level पे आके testing करते हैं. And next is here from bottom to top testing जिसके अंदर जैसे कि आपके all objective oriented language में आप देखेंगे जिसमें हम bottom से top के टूवर्ड मूव करते हैं यानी कि बेसिक सब लेवल से कंबाइन करते करते एक कंबाइन लेवल पे पहुंचते हैं. मेन लेवल पे कंबाइन करते हैं पूरे प्रोग्राम्स में स्मॉल मॉड्यूल्स को. सो बॉटम अप इज द टेस्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ हायरार्की एंड वर्क अप टू द टॉप. हियर द मॉड्यूल आर एडेड इन असेंडिंग हायरार्किकल ऑर्डर. This was about in this session, and there is some exercise that you do it by yourself that explain the black box testing, and the second is what do you mean by white box testing and how it is more efficient than black box testing. Now here we are winding up this session. Thank you so much. Happy learning. We learn.